Good evening, dear Adhisri. We just a second. Huh. Good evening, dear Adhisri. You can speak. We are recording the video. Good evening, dear Adhisri. Good evening, sir. And we are in the video right now discussing about the determiners. And as we were talking right now, anything which determines is a determiner in English grammar. Clear? Yes, sir. So in Yes, that sir. case, I am having a worksheet from a particular renowned website. Here there is the first question. Dash students in my class are very hardworking. So if you put a determiner here, the which one will be the determiner? Sir, No. The nahi because there is students. the students in I my I class have I are have very. shared. Have I not shared the link with you? Have you opened that one? Yes, sir. Then there can you see this now? Read the Yes, sir. question. Then look at that. There is no student. It is students. And because there is students, you cannot use the. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So simply what you do is that you focus on certain things like these, those, that, the, a, and all these are the determinants. But very particularly when it comes to determine which determiner is to be used, like since there is, so we were going through determinants. I am Jit from EnglishB.in, and the other side on the phone is. Hello, I am Adishri from EnglishB.in. And in determinants, we are talking of something which determines is a determiner. So I'm putting Adhisri as well as onto the video here. We are on the online things, and I'm trying to attach her to the video right now. Adhisri, are you able to see my worksheet over here on my desk? Sir, it is flipped. I can see it, but not fully, and it is flipped upside down. Upside down, sir. But then, okay, upside down. You are holding a laptop, cannot flip your device. Okay, I'm flipping mine upside down. So in that case, I need to put like this. And I think this is the correct orientation. Yes, sir, but still the page isn't visible fully. Okay, so I'm flipping that again, flipping the camera to back side. So here, as we were discussing, the question is dash students in my class are very hardworking, and your answer was a the. Here, the problem is that it should not be the. Is it in the correct orientation or upside down? Sorry, flipped. Sir, correct orientation. Beautiful. So, since there are students, okay, since the word students, so here you cannot use the. That means singular determiners can be used. You will be needing a plural oriented determiner. Correct? So, the plural form of determinants are these, those, they. Yes, So, sir. you will be needing them. Right now, I was resetting the camera. Is that okay with you right now? No, sir. Sir, upside down.
Now, Yes, sir, but the page isn't visible fully. mhm, I'll adjust that up a little later. Is that okay? Sir, Now, determiners, can you see? sir. Determines, can you see? Yes, sir. What have I missed? A spelling. The spelling is mistake. What did I miss? Which letter? In determines. Sir, E. Hmm. Actually, I have written, but it is quite close to the S, making it not so distinguishable. Now, again, as we are discussing, since there are students, so Determines is not fully visible. Nothing is visible clearly. Yes, sir. so here, what exactly we are doing is that those students, those students in my class are hardworking students. I may be showing there may be 100 number of students in my class and they are sitting bunch by bunch. And what am I pointing is that I'm pointing to this particular bunch, those students, not these students, correct? Those students. So here you will be needing these or those kind of words. Second question. She bought new dress for the party. Are you seeing the question? Yes, sir. Answer me the. Tell me the determiner. She bought a new dress. All will do. Okay, and again that also will very much do. She bought Yes, sir. that new dress for the party. Now that makes it more determining than all, because she is having some dresses in the wardrobe. She bought a new dress. Any of these is a new dress, okay? And whichever is the new dress, that is she has bought it for the party. But if I point, look at this, that new dress she has bought for the party. So that makes it more specific. Hence, it is a better determiner than A. Got it? Sir. Yes, sir. That of the children enjoyed the field trip. That of the children enjoyed the field trip. Some. Yeah, some. Though it is not very specific, some is a generic one, because again, this kind of thing, there are several bunch of students who went to the field trip and some of them enjoyed. Now to make it more specific, to make the determining more hardbound, what we say, we can say, Those yeah, of the children those of the children, yeah, those of the children enjoyed the trip. Matlab, pointing to a particular group. Okay, those children enjoyed the trip, these children did not enjoy the trip, this particular student had a problem in the trip. This will again a determiner, these is a determiner, those are, is the determiner. So here the best thing is those of the children enjoyed the field trip. Now Sir. tell me, if I say none of the children enjoyed the field trip, will none be a determiner? No, sir. Yeah, yes. बिकॉज जो सारे चिल्ड्रंस थे उनमें से किसी ने भी एंजॉय नहीं किया, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वोलाटाइल स्टूडेंट जो कि एंजॉय किया है। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं किए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स एंजॉयड द फील्ड ट्रिप, वो भी चलेगा, लेकिन आपको आंसर देना है दोज ऑफ द चिल्ड्रेन, ओके, और सम ऑफ द चिल्ड्रेन विल डू। सो आपको इस क्वेश्चन वर्कशीट को कॉपी में भी करना है, और सारे ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूं जिसका वीडियो हम बना रहे हैं मैं अपलोड कर दूंगा, रेफर टू दैट। एंड आप मुझे पर्टिकुलरली द फाइनल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा वो हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट? देन Sir, in the running note. yes, you do it in the running note. Finally we'll keep it in the fair note after a rediscussion of these things to find the most appropriate determiner. Is that clear? Yes, sir. Now let me come to the next sentence, please read it. I need dash penned
I need or help will do or not? Some will also do, sir. I need some help will also do. So some is the Some possible most determining thing. most appropriate. I need some help with my homework. Okay, and I need little help in my homework. Will that do? Yes, sir. And is it in a positive sense or a negative sense? All Sir, little. positive. Nah. All little is always positive and a little is always negative. Means I don't need any help in my homework. I need a little home help in the homework. This is a positive one and this one is a negative one. I don't need. Little means don't. Yes, sir. Take care of this in English. I need little help with my homework. Man, I don't want anybody's help in my homework. Next sentence. Dash books on the shelf are mine. Sir, those books. Because there is again the plural books, so it will be those. Or it could be these, because I am close to the bookshelf and pointing. These books. These books. Correct? These books on the shelf are mine. But it is never this books, that books, because यहाँ पे books है तो हर किस this that the and ये तो हो ही नहीं सकता. तो बेटा आपको अभी जो डिटर्मिनर के क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको दो चीज ध्यान रखना है कि कौन कौन से सिंगुलर वाले डिटर्मिनर्स हैं एंड कौन कौन से प्लूरल वाले डिटर्मिनर्स हैं. प्लीज नोट दिस थिंग्स ये इन योर रनिंग नोट राइट नाउ. दिस दोज. सो बाइफरकेट करके डिटर्मिनर्स जो हैं DTMR, इन DTMR को हमने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया. एक तो सिंगुलर डिटर्मिनर्स एंड प्लूरल डिटर्मिनर्स. अभी तो जो क्वेश्चंस जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. He has dash interesting idea for the project. Simply on. Uh-huh. Yes, sir. Yeah. Why are you getting so confused? Go slow. I had always told you don't be too fickle. Don't be always in the run. Calm down. By the way, from the calm down, yesterday in one particular class, I was discussing about silent, the word, quiet, QUIET, and calm. Can you please give me the exact difference between these three words by using them into some sentences? The night, the place was very quiet. The place was very silent. The place was calm. Sir, if I say then calm means it is in a stable, a harmonic mode, but it cannot be quiet. It also can make a sound, which is very calm, peaceful. And any further thing you further ahead, can you think something else? Further ahead, आपने जितना बोल दिए वो समझ में आ गया. उससे आगे आप दूर तक क्या सोच पा रहे? How far can you think about this? और further क्या सोच पा रहे? Sir, it can be used in the form of person or in the form Beautiful, of a place and beautiful, beautiful. This can be taken as a trait, and these are simply their adjectives for sound. Silent and quiet are adjectives for sound. लेकिन काम साउंड का एडजेक्टिव भी हो सकता है. प्लस स्टे काम अगर मैं बोलूंगा, प्लीज स्टे काम मतलब डिस्टर्ब मत हो, वरीड मत हो. सो काम जो कि साउंड का एडजेक्टिव भी हो सकता है. दिस इज ए क्वाइट काम एंड सीरीन प्लेस हो सकता है. काम मतलब भीड़ भाड़ कम है, साउंड नहीं आ रहा है. लेकिन हम किसी एक पर्सन के ट्रेट के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं प्लीज स्टे काम, ही इज ए काम एंड क्वाइट पर्सन. काम एंड क्वाइट मतलब कम बोलते हैं और काम मतलब जल्दी में नहीं रहते हैं.
वो आराम से काम करते हैं। क्या करते हैं? आराम से। तो माय डियर, The एक object was very calm to look at. वोंट बी सच अप्रोप्रिएट, उतना अप्रोप्रिएट तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट काम का क्या मतलब समझ नहीं आया। ऑब्जेक्ट वॉज काम टू लुक एट नहीं हो पाएगा माय डियर, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट वॉज स्टिल बोल सकते हैं। STILL, स्टिल मतलब ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, स्टैंडिंग में। लेकिन मैं यहाँ पे आपके जो मन में उथल पुथल होता है, वरीडनेस आता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो द सी, हाँ, द सी इज क्वाइट कामर टुडे। ओके, द सी जिसमें बहुत सारे वेव्स आते हैं छोटे बड़े, करेक्ट, उस केस में हम बात कर सकते हैं कि द सी इज अ लिटिल कामर टुडे। हम नहीं बोल सकते सी इज साइलेंट टुडे, हम नहीं बोल सकते सी इज क्वाइट टुडे, लेकिन हम बोल सकते द सी इज कामर। कामर, CALMER, एडजेक्टिव। और calm today, or calmer today, because every day it stays a high tide, today it is smooth. A river is more calmer than the sea, that could be the case. So calm मतलब जहां उथल पुथल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होता है, नॉट इन एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ साउंड, वहां पे भी हम काम लगा सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स। डैश पीपल बिलीव इन घोस्ट्स? सम, Sir, those, these, some, anything will do. नाउ अगेन पीपल है, आपको ध्यान रखना है, पीपल हो तो प्लूरल है। तो दिस दैट, ये जो मैं बता रहा था सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रहा था यहां पे, तो द, दिस, दैट, ए, आन, ये तो नहीं लगेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल। दीज, दोज, सम, फ्यू, फ्यू कुड बी दिस। Look at this, another determiner I'm writing. Few people, मैं आपको थोड़ा सा अगर सेंटेंस चेंज कर दूं तो 100% फ्यू हो जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगा, डैश पीपल बिलीव इन घोस्ट्स दीज डेज, दीज मॉडर्न डेज, आज के a few मॉडर्न, people. वेरी फ्यू पीपल। तो फ्यू पीपल बिलीव इन घोस्ट, आज के जमाने में कोई बिलीव ही नहीं करता। गेटिंग मी? अगर ओल्डर जमाने की बात करें तो सम पीपल बिलीव इन घोस्ट, नॉट एवरीबॉडी। सो सम विल डू, है ना। अच्छा, दोज, दीज, ये तो अभी हर जगह पे अप्रोप्रिएट हो जा रहे हैं। दोज पीपल बिलीव इन घोस्ट, वो तो हो जाएगा। दैट, तो उसमें क्या होता है जब क्वेश्चन दिया जाता है माय डियर, तो क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दे दिया जाता है टू क्लोज इन द ब्रैकेट। जैसे वहां पे सम दिया गया होगा, दिस दिया गया होगा, द दिया गया होगा, और बोला गया होगा कि इनमें से एक चूज करो। तो डेफिनेटली दिस और द नहीं होंगे, क्योंकि पीपल की बात हो रहा है, प्लूरल की बात हो रहा है। ठीक है, तो पीपल की बात जो हो रहा है, तो अगर सम ब्रैकेट के अंदर आपके पास ऑप्शंस में है तो सम आ जाएगा। अगर उसी ब्रैकेट में आपके पास सम एंड दोज दोनों हैं, तो आप एनी ऑफ दिस चूज करोगे तो भी करेक्ट होगा। करेक्ट। नाउ इन सर्टन सेंटेंसेस इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस दैट कि ये दोज होगा, सम नहीं होगा। देखते हैं आगे ऐसे सेंटेंसेस है। वी सॉ डैश शूटिंग स्टार लास्ट नाइट। अच्छा, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, दैट, द, ऑफ, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा? ना, मैं बोलूंगा द, क्योंकि जब डिटरमाइन कर रहे हो, द इज ए बेटर डिटरमिनर देन अ। अगर अ एंड द दोनों का ऑप्शन है तो हरदम आप चूज करोगे कौन सा? द। कैसे? ना, जो शूटिंग स्टार है, कल एक शूटिंग स्टार आया था, पता है तुम्हें? तो अ क्यों बोलेंगे? इफ एवरी नाइट देयर इज ए शूटिंग स्टार, ओके, एंड यस्टर नाइट अगर 10 शूटिंग स्टार्स थे, 10 stars from the sky shot down to the earth, तो मैं बोलूंगा अ। कल 10 हुआ था, उसमें से मैंने एक लिखा, लेकिन कल रात को अगर एक ही शूटिंग स्टार था तो एक ही जगह द इज बेटर। ये सुनो,
So skipping this Hindi text, we are speaking of determinants from English grammar. I'm in conversation with Adhisri on that side. This is Jeet from EnglishB.in. And And we this is Adishri. and right now we are talking of some questions from a worksheet on determiner. Now, she made dash mistakes in her essay. A few. Of few or khali few? A few. A Yeah, few. few mistakes. She made few mistakes in her essay. Okay, And why not a few? because it is asking for a determiner. Or is a determiner, few is a determiner. Which one do you want? Why do you confuse yourself? Okay. Now again, I had told you, whenever there is a little, it is positive sense or negative sense. Positive. Little is a positive sense or negative sense? Khali little. Negative. So this is negative sense and all little is a positive sense. Now हम बात कर रहे हैं कि उसने मिस्टेक किया या नहीं किया. Yes, sir. नहीं किया या किया, क्या बोलना चाह रहे हैं? Sir, किया. अच्छा, तुम किया बोलना चाहते हो तो एफ ऑफ यू. मैं चाहता हूं वो फ्यू मिस्टेक्स, मैंने कुछ मिस्टेक्स की ही नहीं है, मतलब रेयर है, तो फ्यू. बट क्योंकि हमें एक ही डिटर्मिनर चाहिए वहां पे, ऑफ यू विल कंफ्यूज द इवैल्यूएटर, और आंसर ऑफ यू और फ्यू में से फ्यू विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. खाली फ्यू. शी मेड फ्यू मिस्टेक्स इन हर एसे. Sir. Again, these questions, whatever we are discussing, are arguable. Okay? Arguable. And finally, after arguing with several Nobel laureates in English, you will come to a specific conclusion. But my dear, whenever a sentence is given, do you feel the at times these sentences, meanings of the sentences in English behave contextually? Contextually मतलब मैं बोलूंगा द कैट इज म्यूइंग, MEOW, द कैट इज म्यूइंग, करेक्ट? तो Sir, it is wrong. तो क्यों रॉन्ग होगा? Sir, it should be MEWING. MEWING, ओ निकाल दिया, ठीक है. द कैट इज म्यूइंग मैं बोला, तो कैट इज म्यूइंग जो बोल रहा हूं अभी, क्या ना, एक कैट हमारे घर में है, एक कैट बाहर कहीं साउंड कर रही है. Sir. तो इन दैट केस अ कैट इज म्यूइंग जो मैं बोल रहा हूं, तो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या बन जा रहा है दोनों केस में? मैं बोल रहा हूं अ कैट इज म्यूइंग. मैं अगर बोलूंगा और मेरे घर में 3-4 बिल्लियां हैं, रात को 2 बजे 2 AM मैं बोल रहा हूं कि मामा मामा एक कैट इज म्यूइंग, मतलब हमारे जो 4-5 अभी बेबीज घर में आए हैं, किटन्स, उसमें से एक कोई बच्चा को कोई तकलीफ है या भूख लग रहा है, इसलिए वो म्यू कर रहा है. आई एम अलर्टिंग दैट. मामा को स्पेसिफाई कर दिया. लेकिन मैं अगर बोलूंगा हमारे घर में कोई बिल्ली ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूं कि एक कैट इज म्यूइंग, मतलब वो कोई बाहर एक कैट म्यू कर रहा है, इसलिए मुझे नींद ठीक से नहीं आ रहा है, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. So what I mean to say is that one particular sentence in English can have different contextual meaning. A cat is mewing can mean that कि I'm getting disturbed. A cat is mewing can mean that कि मामा please take care, एक किटन रो रही है, खाना मांग रही है. सो उसी तरह से आपको थोड़ा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देख के कभी कभार आपको वर्ड्स अटैच करने पड़ते हैं. कमिंग बैक, dash time I see him, he looks happier. Come This on. time. This time. Now this time I see him, he looks happier. Okay, will do. But Sir, it is sounding a bit odd. but is it not like that कि यहाँ पे past tense होना चाहिए था फर्स्ट हाफ में? This time I saw him, he looks happier. Sir, if it would
Very good, good analysis. So this time I see him, he looks happier. Now let me analyze this thing. This time आई सी हिम, मैं लिख रहा हूं ये वाला सेंटेंस, आप भी हो सके तो कॉपी में लिखो, वहां पे कॉमा है, उसके बाद लिखा गया ही लुक्स हैप्पियर। अच्छा माय डियर, मुझे बताओ वहां पे मैं थोड़ा जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं, वहां पे कॉमा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क और शुड एनीथिंग एल्स बीन गिवन? See him. He looks happier. Sir, comma is the most appropriate. नो माय डियर, सेमीकोलन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। क्यों बोलो? दिस टाइम आई सी हिम, वो बात एक खत्म हो जा रहा है, मैंने इस बार उसको देखा। ही लुक्स हैप्पियर इज अनदर सेंटेंस ऑल टुगेदर। कॉमा कहां लगता Sir, है? if I tell it my point of view, I think it is telling that अभी जो मैंने देखा तो वो खुश लग रहा था। तो अभी जो मैंने देखा, तो आपको जो ना व्हेन आई सी हिम, तो होने से तो कॉमा होता है ना। दिस टाइम व्हेन, अगर एक व्हेन खाली लग जाता, दिस टाइम व्हेन आई सी हिम, तो बाय द वे यहां पे सी हिम तो मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन जो भी दिस टाइम व्हेन आई सी हिम ही लुक्स हैप्पियर। और Sir, it would have been saw. This yes, time I saw him, he looks happier. या और ही लुक्ड हैप्पियर। Because we have already seen. We have already seen him. And we are telling the person that this time when I saw him, he looks happier. Sir, looked happier. हाँ, दिस टाइम आई सी हिम ही लुक्स हैप्पियर। ये जो सेंटेंस है जिसमें कॉमा है, मैं बात कर रहा हूं कि उसमें पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। ये कॉमा कब बनने से और ज्यादा अच्छा लगता, कैसे मैं बोल रहा हूं, आई सी हिम, ही लुक्स हैप्पियर, और सिंपली दिस टाइम कॉमा ही लुक्स हैप्पियर, करेक्ट। दिस टाइम ही लुक्स हैप्पियर, आई सी ही लुक्स हैप्पियर, इन दोनों जगह पे कॉमा वुड हैव बीन ए बेटर पंक्चुएशन मार्क। पर मैं जब बोल रहा हूं कि दिस टाइम आई सी हिम, मतलब एक सेंटेंस खत्म हो चुका है ऑलरेडी। मैंने इस बार उनको देखा, ओवर, वो अच्छे खुश दिख रहे थे, अनदर पार्ट। सो यहां पे जितना करीब टू एंडिंग ऑफ द सेंटेंस है उतना तो इधर फुल स्टॉप होना चाहिए या सेमीकोलन। तो मैं इसको फुल स्टॉप में भी लिख सकता था, दिस टाइम आई सी हिम फुल स्टॉप ही लुक्स हैप्पियर फुल स्टॉप, वुड हैव बीन करेक्ट, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. तो कॉमा कहां लगेगा ना, जहां पे एक फ्रेज होगा, जैसे आई सी हिम ही लुक्स हैप्पियर, मैं देख रहा हूं कि वो खुश है। दिस टाइम कॉमा ही लुक्स हैप्पियर, इस बार वो हैप्पियर है। नाउ दिस टाइम फुल सेंटेंस नहीं है, आई सी हिम फुल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेल्स दैट हैप्पियर, तो उस जगह पे कॉमा इज अप्रोप्रिएट। लेकिन यहां पे जो सेंटेंस है दिस टाइम आई सी हिम, इसमें वो क्लॉज ही लुक्स हैप्पियर सेपरेटली छोड़ने से भी इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा था सेमीकोलन। एनीवे, you go through this video once again, cross analyze all those things. Any mistake anywhere you think we have committed, we can mark them as star question mark to discuss that again. So in English grammar these kinds of situations happen, तो बार बार करने से वो रेक्टिफाई हो जाता है। आगे जाते हैं, आगे चलते हैं, खत्म करेंगे। Dash sun rises in the east. The sun. No other argument over here. She bought dash new car yesterday. He bought a new car. That new car, Mm. this new car, Yes, sir. the new car, Sir. all of these are appropriate. And if you ask me एक की जगह अगर that होता तो मैं बोलता भाई all and that में मैं that चूज करूंगा, all and this में मैं this चूज करूंगा, और दी में मैं द चूज करूंगा, क्योंकि ऑ इज ए लेस ग्रेव डिटर्मिनर, ऑ इज ए लेस ग्रेव डिटर्मिनर देन द
दिस एंड दैट। द दिस दैट जो है वो मोर और ज्यादा भारी डिटर्मिनर है कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं जेनेरिक बोल रहा हूं दैट या दिस को पॉइंट अप नहीं कर रहा हूं तो ऑ की जगह द देने से बेटर होगा। तो बेटा जब भी आपको कोई एक जेनेरिक डिटर्मिनर देना पड़ता है सिंगुलर में, सीधा टारगेट द, क्योंकि इसको इवैल्यूएटर काट ही नहीं सकते। सी बॉट द न्यू कार यस्टरडे। अगर आपको ऑप्शन दिया गया होगा लाइक ऑ एंड दैट, तो आप दैट चूज करना। ऑ एंड दिस तो आप दिस चूज करना। ऑ एंड दी तो आप दी चूज करना। दैट दिस एंड द तो आप चूज करना द, क्योंकि द इज मच मोर स्पेसिफिक देन दिस, दैट, ऑ, अनलेस अंटिल देयर इज ए पॉइंटिंग। तो अगर सेंटेंस लिखा गया है कि सी बॉट डैश न्यू कार यस्टरडे, सी बॉट दिस न्यू कार यस्टरडे, दैट न्यू कार यस्टरडे, द न्यू कार यस्टरडे, सारे अप्रोप्रिएट है। द न्यू कार लगा देने से आपको ना दिखाना पड़ेगा ये वाला ना वो वाला, दिखाने की जरूरत नहीं भाई, जो नया कार है ना वो कल ही खरीदे वो। अच्छा दिस न्यू कार दैट न्यू कार बोल देने से क्या हो जा रहा है ना, उनके पास पहले से 4-5 गाड़ियां थे, करेक्ट। उनके पास 4-5 गाड़ियां उन्होंने खरीदे हैं लास्ट 2 महीने में, करेक्ट। उसमें से ये वाला जो नया कार है, नया कार तो चारों हैं, चारों नया कार हैं, पर ये वाला जो नया कार है दिस वन वो कल खरीदी, वो कल खरीदी। सो अगर जेनेरिकली आपको ये नहीं मिल रहा है कुछ भी तो दी लगा के छोड़ दो भाई, मोस्ट सेफर और सेफेस्ट ऑप्शन यू हैव। Sir. Then comes, can you pass me dash salt please? अगेन भाई मैंने जैसे बोला आंख मूंद के बोल दो, कैन यू, क्या द लगा दो, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, द सॉल्ट प्लीज। अब द सॉल्ट में 4 सॉल्ट रखे होंगे तो भी मिलने स्पेसिफिक हो जाएगा। Sir, that. हाँ दैट नहीं, Sir, that. क्यों दैट सॉल्ट, क्योंकि आपके टेबल पे क्या 5 सॉल्ट रखे रहते हैं आपके डाइनिंग टेबल पे। Sir, black salt. Sir, black salt. तो अगर आप, Black salt and plain salt, rock salt, pink salt. ठीक है, पर जब तक आप पिक्चर में नहीं देख रहे हो कि 5 सॉल्ट लिखा गया और मैंने यहाँ पे उंगली किया हुआ है, तो दैट या दिस बोल सकते हो क्या? No, sir. लेकिन द तो बोल सकते हो ना बिना देखे, कैन यू प्लीज पास ऑन द सॉल्ट। तो जब लिटरली बोला, जब लिटरली बोला जा रहा है, ग्राफिकली नहीं बोला जा रहा है, तो मैम द इज द बेटर ऑप्शन देन दैट दिस, Sir. अनलेस अंटिल इट इज गिवन इन एन ऑप्शन। अगर ऑप्शन के ब्रैकेट में होता दैट दोस तो आप चूज करते दैट, और क्या करोगे, क्योंकि सॉल्ट की बात हो रहा है सिंगुलर, दोस्त तो हो ही नहीं सकता, दैट होगा, और क्या, समझे। तो क्वेश्चन में जब तक ऐसे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ऑलवेज स्टिक टू व्हाट, द से ज्यादा अच्छा डिटर्मिनर कोई है क्या? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, द से अच्छा डिटर्मिनर कोई होए क्या? No, sir. और लिटरली अगर ग्राफिकली बता नहीं गया है, डायरेक्शन पॉइंट नहीं किया गया है, तो दिस दैट दोज दैट कर सकते हो क्या? No, sir. उससे बेटर है द। ओके देन कम बैक, लेट मी कम डाउन। द सन राइजेस द इन द ईस्ट। ओके एनीवे, she bought a new car, can you pass me, he gave me dash interesting book to read। This. अच्छा दिस इंटरेस्टिंग बुक की जगह एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं यहां पे एक बड़ा अच्छा चीज आया, आप जब बोलोगे कि दिस लगाओगे तो खाली बुक से कम नहीं होगा क्या? उसमें इंटरेस्टिंग लगाने की क्या जरूरत है? आपने एक किताब पढ़ रहे थे, मम्मी घर में रूम में आई और आप बोल रहे हो कि मम्मी शी और प्रिया गेव मी दिस बुक व्हिच इज इंटरेस्टिंग, और बोलोगे कि मम्मा
प्रिया दिस इंटरेस्टिंग बुक मुझे दी है, तो दिस इंटरेस्टिंग बुक ऐसे बोलोगे या बोलोगे दिस बुक? अच्छा, this book. एंड मैं बोलता हूं उल्टा, दिस बुक, या वेरी गुड। एंड मैं अगर बोलूंगा कि मामा यहां पे तो क्वेश्चन में ही है इंटरेस्टिंग बुक, करेक्ट? क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है, सो मैं बोलूंगा मामा प्रिया गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, प्रिया गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। अब आप बोलो, जब इंटरेस्टिंग ऑलरेडी लिखा गया है तो दस इज मोर मोर अप्रोप्रिएट और आन इज मोर अप्रोप्रिएट, Fan. माय डियर, ऑलवेज लाइक दैट। सो सेंटेंस का मीनिंग समझने से, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में बता रहा हूं, तो आपको बहुत सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो यहां पे हो जाएगा मामा प्रिया गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, देयर आर डैश एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। नो, Few. नो, A few. अब फ्यू एप्पल्स लेफ्ट हो सकता है, देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द मामा, देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, प्लीज फेच सम न्यू मोर। तो मम्मी आते हुए घर से आपको एप्पल लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं नो लगा सकता हूँ क्या? अगर, Yes, sir. और फ्यू और नो में से कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा है? No. माय डियर, एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो रहा है। तो अगर आपके ऑप्शंस में है फ्यू, दिस, दोज, तो जनरली आप फ्यू ही बोलोगे। अगर ऑप्शंस में फ्यू कॉमन नो है और दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो बेटर टू चूज नो, क्योंकि ये मोर डिटरमाइनिंग फैक्टर देन द फ्यू। Okay, so go through the video, go through this one all the together once again. Wherever you want to argue the things with me, you can, you are allowed. Now, dash few people attend the party. Few people. Already few are there. Are you not looking at the question, my dear? Read the question. A few. Of few people attend. हाँ, very. If I say very, Sir. Yes, sir. क्योंकि वेरी एक डिटरमिनर कब बनता है मैं बताता हूं। वेरी सेम पर्सन मेट मी टुडे, ओके, वेरी सेम पर्सन मेट मी टुडे, मतलब मैंने एक बंदे को देखा था, एक जन को देखा था मैंने, वही बंदे मुझे आज मिले। जब मैं लगा दे रहा हूं वेरी सेम, मतलब ये और ज्यादा स्पेसिफाई हो जा रहा है। मामा द वेरी सेम पर्सन मेट मी टुडे अगेन इन द मार्केट, ओके। तो माय डियर, हियर वेरी फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी। अब फ्यू मतलब कम, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। अब क्योंकि देर इज ए थिंग टू बी एडेड बिफोर फ्यू, लाइक फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी, फ्यू इज द डिटर्मिनर, dash few people attended the party, very, because here very few becomes the determiner and very few becomes a more specific determiner because it is talking of 5 4 10 लोग भी नहीं, एक या दो लोग अटेंड किए थे। फ्यू 10 5, वेरी फ्यू 2 3। अब क्योंकि देर इज ए ब्लैंक बिफोर फ्यू, तो आपको कुछ तो वर्ड लगाना था, तो भाई वेरी लगा देने से बेटर होगा। I have read dash few books by that author. A few books. A few books will do. A few books will do, which gives a positive sense. मैंने उन ऑथर के बारे में कुछ किताबें पढ़ी हूँ। मैंने उन ऑथर का कुछ किताबें पढ़ी हूँ। Yes, a few will do. अगर मैं बोलूंगा I have read very few books about that author, ठीक है, मतलब मैंने बहुत सारे ऑथरों का बुक्स पढ़ चुकी हूं, लेकिन इन ऑथर का बहुत ही कम किताब पढ़ी हूं। तो वेरी फ्यू, ऑफ यू बोथ विल डू, ओके, एंड ऑफ यू इज बेटर हियर देन वेरी फ्यू बिकॉज इट विल बी जनरेटिंग ए पॉजिटिव सेंस। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में ऑफ फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी एंड वेरी फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी में वेरी फ्यू पीपल विल बी मोर स्पेसिफिक इंटेंसिटी।
I have Tapar, they are planning to visit dash museum next week. They're planning to visit. क्योंकि एक सिटी में जनरली एक ही म्यूजियम, हाँ एक सिटी में जनरली एक ही म्यूजियम रहता है, ठीक है, इसलिए द इज बेस्ट, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, सिटी में म्यूजियम की बात करें तो एक ही रहता है। लेकिन आज भुवनेश्वर की बात करते हैं, हम भुवनेश्वर में अभी रह रहे हैं, तो भुवनेश्वर में माय डियर अभी 3-4 म्यूजियम्स आ चुके हैं। एक हमारा स्टेट लाइब्रेरी म्यूजियम यहाँ पे है, दूसरा हमारा एक हिस्टोरिकल मैनेजमेंट वाला म्यूजियम जयदेव बिहार में है, तीसरा एक फिजिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक तीसरा म्यूजियम है तीसरी जगह, गिनी में। तो अगर 3 म्यूजियम्स आ गए तो हम बात कर सकते हैं कि दे आर प्लानिंग टू विजिट दैट म्यूजियम और दिस म्यूजियम। लेकिन ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, मैंने आपको बोला हूं जब भी दैट दिस एंड द आता है तो द इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सेफ वन, सेफ है। सी लाइक्स डैश टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स। She likes those. Clearly those, there is no other option over here. Next, read the sentence. We need to buy the dash milk from the store. Some. Over, there is no other option, there is no other option. Thank you, we will stop over here. So as I told you, while finding out the determiner, the very widely used and most specific determiner is, the other determinants are divided into Singular and plural. in singular comes A and this, the, that. are the articles determiners, Yes, sir. can be taken as correct. These, those, Yes. few, some, these are also determiners which work in case of plural. Thanking you all. This is Jit from EnglishBee.in, and on the other side, This is Adishri from EnglishBee.in. and ending the class. Thank you, dear all audience. Do connect us with the YouTube channel of ours. Do subscribe to that one.